جب بھی صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کا ذہن پشاور، چارسدہ، مردان کی طرف جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست کا ایک بہت بڑا دروازہ باب ہزارہ بھی ہے۔ یہ وہ ریجن ہے جہاں سے پاکستان کی سیاحت، پاکستان کی بجلی، پاکستان کا پانی اور ایک بہت بڑی تاریخ رواں دواں رہی ہے۔ صوبہ ہزارہ بہت بڑا نعرہ ہے جو خیبر پختونخوا کے ہر حصے کو ہلاتا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ صوبہ ایک تھا۔ خیبر پختونخوا کا نام رکھے جانے کے بعد صوبہ ہزارہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کو اگنور کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اپنی توجہ اس الیکشن میں پشاور کی جانب مرکوز نہیں کر رہی، وہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ کے ذریعے داخل ہونا چاہتی ہیں۔ ان کے خیال میں خیبر پختونخوا کی بنیادی سیاست شاید توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور اگر کسی جگہ پر وہ پنجے گاڑ سکتی ہیں تو وہ ہزارہ کا ریجن ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہزارہ کے ریجن میں سیاست کے رنگ کیا ہیں۔ بڑی جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور چند مذہبی جماعتیں اس جگہ پر کس قسم کی الائنسز چلا رہی ہیں۔ کیا جماعتوں کا یہاں پر کوئی حقیقی رنگ ہے بھی یا شخصیات یہاں پر حاوی ہیں؟ اگر آپ ہزارہ کی سیاست کا تاریخی تناظر دیکھیں تو 70 کی دہائی سے آپ کو یہاں پر بہت بڑی سیاسی ہلچل نظر آئے گی۔ اگرچہ اس وقت سیاسی جماعتیں وہ نہیں تھیں جو آج کل ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی جماعتوں کے لیے بڑی شخصیات ووٹ یقیناً حاصل کیا کرتی تھیں۔ 1970 میں ہزارہ کی کل نشستیں 4 تھیں، جن میں سے 2 نشستیں جمعیت علماء اسلام نے جیتیں اور 2 نشستیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کیو، لیکن کیو سے مراد قائد اعظم نہیں بلکہ قیوم ہے۔ 77 میں پیپلز پارٹی کی اٹھان آپ کو نظر آئی، اور پی این اے کی تحریک کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے 2 قومی نشستیں جیتیں۔ پاکستان نیشنل الائنس نے یہاں سے 4 نشستیں حاصل کیں۔ 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد، جو بنیادی طور پر مذہبی جماعتوں اور لیگ کے ووٹروں کا اکٹھ تھا، یہاں سے 4 نشستیں حاصل کیں۔ 1990 میں اسی اتحاد نے 7 میں سے 4 نشستیں دوبارہ حاصل کیں۔ اس کے بعد اس علاقے میں مسلم لیگ کا زور بڑھتا گیا۔ اگرچہ شخصیات حاوی رہیں، لیکن ہر شخصیت کو ایک پارٹی کا جھنڈا درکار تھا۔ 1993 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے 7 میں سے 6 نشستیں حاصل کیں۔ یہ وہ کارکردگی تھی جو انہوں نے 1997 کے الیکشن میں بھی دہرائی۔ 2002 میں چونکہ جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا سخت امپوز کر دیا تھا، اس کے تحت ہونے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کاف حاوی نظر آئی، اگرچہ وہ شخصیات جو نون لیگ کے ساتھ تھیں اب کاف لیگ میں داخل ہو چکی تھیں۔ 4 نشستیں گئی پاکستان مسلم لیگ کاف کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لینے والے بہت کم لوگ تھے۔ 2008 میں مسلم لیگ نواز نے دوبارہ اپنا سر اٹھایا اور 4 نشستیں حاصل کیں۔ اگر یہی ٹرینڈ قائم رہتا تو شاید اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی مشکل درپیش نہ ہوتی، لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون باوجود اس کے کہ اس کے سامنے کاف لیگ کی کوئی سیاسی اوقات یا وزن نہیں تھا، اس حصے میں بالخصوص کمزور نظر آئی۔ اس پر بہت سی تہمتیں لگیں، اس پر بہت سے الزامات لگے۔ سب سے بڑا سیاسی الزام یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کی ایسپریشنز کو وہ صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کر پائی۔ کیپٹن سبتر اور سردار مہتاب خان عباسی کے درمیان ایک خاموش قسم کی جنگ بھی یہاں پر حاوی رہی، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون بہت سے دھڑوں میں بٹ گئی۔ ان ناکامیوں اور ان تہمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے آہستہ آہستہ اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ جمانا شروع کر دیا۔ اب پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں کی نسبت ہزارہ ریجن میں ان کا ڈنکا زیادہ بجتا ہے۔ ہزارہ میں ہمیشہ جو برادری ہے اور جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے وہ تھوڑی سی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔
مگر ہزارہ میں بھی خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بہت پذیرائی ہے، بہت زبردست رسپانس ہے وہاں پہ، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہم ایک میجورٹی جیتیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہزارہ سے میجورٹی سیٹیں نکالیں گے۔ ہم ابھی سب سے جو ضروری چیز ہے ہماری کینڈیڈیٹ سلیکشن ہے، اور ہم ایک تبدیلی کی پارٹی ہیں، ایک نئی پہچان کی پارٹی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں اس کی طرح آپ نہیں پائیں گے، اور خاص طور پہ عوام کا یہی ایک اس وقت مطالبہ ہے کہ آپ نئی اگر بات کرتے ہیں تو آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو آپ کینڈیڈیٹ کی شکلیں بھی تبدیل ہونی چاہیے۔ اس علاقے میں مقامی سیاست صوبائی اور قومی نشستوں پر حاوی رہتی ہے۔ اگر آپ نے محلے اور یونین کاؤنسلز کو اپنے قبضے میں نہیں کیا تو صوبائی اور قومی نشستوں میں اپنا اثر و رسوخ بھول جائیے۔ یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف مقامی طور پر کتنی منظم ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد کے دفتر کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود اس وقت کے نمائندگان سے بات چیت کی۔ وہ بہت پر اعتماد تھے اور بتا رہے تھے کہ اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا ملنے والا ہے۔ اب ہمارے جو متوقع کینڈیڈیٹس ہیں وہ انہی برادریوں سے ہیں جو وہاں پہ ان حلقوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ماضی میں وہ الیکشن وہاں سے جیتتے بھی رہے ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ تمام کی تمام چینج ہو چکی ہے نا اس پورے ایریا میں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ برادریوں سے ان چیزوں سے ہٹ کے نظریے کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ان دو پارٹیوں نے اتنا پریشان کیا ہے، اتنا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مسلم لیگ کے پہ تو سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ جی انہوں نے صوبے کا جب نام چینج کیا گیا تو وہ اس کمیٹی میں تھے، اس لیے مسلم لیگ کو تو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں کوئی نہیں پسند کرتا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مہتاب عباسی صاحب جو وہاں سے امیدوار ہیں وہ گزشتہ 24 سال سے جیتتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس ایریا کی حالت دیکھیں ان کے حلقے کی، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لوگوں کو جابز نہیں ملی۔ وہ ایک دفعہ چیف منسٹر بھی رہے، اس وقت بھی انہوں نے عوام کے مسائل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لوگوں میں نفرت ہے ان کے خلاف۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں پہ آپ آ جائیں، صوبائی اسمبلی برادری اس میں چلے جائیں تو 47 سے بھی ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹ ہے جو ایک الیکشن پہلے جیت چکا ہے، اس کی سب سے بڑی برادری ہے۔ 11 یونین کونسلیں ہیں، 11 میں سے 7 یونین کونسلیں ان کی برادری کی ہیں۔ اس کے بعد آپ PF 44 پہ آ جائیں، وہاں سے میں بھی ٹکٹ کا امیدوار ہوں۔ ہماری برادری کا یہاں پہ 17,000 رجسٹرڈ ووٹ ہے، اور وننگ کینڈیڈیٹ کو 10-11,000 ووٹ چاہیے یہاں سے۔ اسی طرح آپ PF 46 پہ چل رہے ہیں، ملک شراز عوان صاحب ون آف دی کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی بھی سب سے بڑی برادری ہے وہاں پہ۔ آپ PF 48 پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ملک صفدر عوان صاحب، خان صاحب ان کے گھر بھی تشریف لے گئے، تو ان کی بھی بہت بڑی برادری ہے۔ اگر ان کی برادری کی صرف 3 یونین کونسلیں بھی ووٹ ون سائڈڈ ڈال دیں تو یہ بھی از دی وننگ کینڈیڈیٹ۔ تو ہم نے بھی وہ جو برادری والا کمبینیشن ہے اس کو بالکل فٹ ان کیا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم ایک بہت بڑا درد سر ہے جس کا سامنا ہر سیاسی جماعت کو ہے۔ اس پر میں تفصیل سے ایک اور پروگرام کروں گا، لیکن فی الوقت یہ بتانا کافی ہے کہ یہ صاحب جو چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے گن گا رہے تھے، ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کے طے ہو جانے کے بعد اب سخت نالاں بھی ہیں۔ لوگوں نے، جیسے میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کر رہا ہوں، 80,000 ممبرز ہیں ہمارے، 80,000 ممبرز نے ایک پروسیس کے ذریعے مجھے ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ منتخب کیا۔ اب اگر ٹکٹ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کو نہ دیا جائے اور کسی دوسرے آدمی کو دے دیا جائے جو الیکشنز میں بہت کم ووٹ جس نے لیے اور جو ہار چکا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی PTI کے کارکنوں کے اس فیصلے کی نفی کر رہے ہیں جو انہوں نے دیا ہے۔ تو اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ جو عوام کا فیصلہ ہے، جو PTI کے کارکنوں کا فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کچھ لوگ جو ہیں اپنے وہ جو فیورٹس ہیں ان کو ٹکٹ تقسیم کرتے پڑیں، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں نا، ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں یا ہمارے ہزارہ ریجن پورے میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اور ہمارے ریجن کے کینڈیڈیٹ جو ہے علی اصغر خان صاحب تھے، انہوں نے 101 ووٹ لیے، ان کے مقابلے میں جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا اس نے صرف 4 ووٹ لیے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ علی اصغر خان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا اور اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے جس نے 4 ووٹ لیے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے
इसका मतलब है कि खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के उस फैसले की टोटली नफ़ी कर रही है जो अवाम ने दिया है। अवाम के फैसले की अगर नफ़ी हुई, आप उन लोगों को असम्बली से रोक रहे हैं जो डिज़र्व करते हैं और उन लोगों को असम्बली में भेजना चाहते हैं जिनको अवाम नहीं चाहती, पीटीआई के कारकुन नहीं चाहते, तो फिर ये वो दाल पकने वाली नहीं है। ये मामलात अपनी जगह पर, हम इस अमर को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो हालिया असेसमेंट्स की हैं उनके मुताबिक हज़ारा के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इनके पास कैंडिडेट्स भी हैं, मुकामी तौर पर इमरान खान का नाम भी बड़ा है और नए वोटर के ऊपर इन्हिसार भी किया जा रहा है। पीटीआई का ख्याल है कि नए वोटर और पुराने चेहरे मिलकर उनको पार लगा देंगे। तमाम जमातों का ख्याल है कि इस मरतबा इलेक्शन के अंदर वोट ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा डलना चाहिए। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि अगर ज्यादा वोट डले और तमाम का तमाम ज्यादा वोट हमें पड़े तो उससे हमारा सियासी मुकद्दर चमक जाएगा। ज्यादा वोट डालने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए। इलेक्शन से चंद रोज पहले हज़ारा के अंदर जहां पर हम खड़े हैं अभी भी लाइनें जो हैं वो लंबी लगी हुई हैं। नादरा का कहना है कि इलेक्शन के करीब ये मामला खत्म हो जाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दे पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग रह जाएंगे होंगे वो इंतखाब के अंदर शिरकत के हकदार, आईडी कार्ड ना होने की वजह से इंतखाबी अमल से बाहर रहेंगे। इन इलाकों में आपको घूमकर एहसास होता है कि पाकिस्तान की सियासत कितनी कॉम्प्लेक्स है। स्टूडियोज में बैठकर जो तज्जिए किए जाते हैं सड़कों के ऊपर आकर खाक हो जाते हैं। लोग वोट देने पर माइल हैं। इस मर्तबा हज़ारा के इलाके में लोगों की वोट और इलेक्शन में दिलचस्पी बहुत अरसे के बाद वो नजर आई जो 70 की दहाई में देखी गई थी। बाज लोगों का ख्याल है कि जितना भी वोटर रजिस्टर हुआ है उसका 95% शायद इस इलेक्शन में वोट करे। बहुत बड़ी तादाद होगी, लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस का इजहार करना है। इलेक्शन बुनियादी तौर पर लोगों के बारे में है। लोग जो हैं वो बरादरियों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नजरियात के साथ भी जुड़े हुए हैं। खानदान, बरादरी, शख्सियात, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में और हज़ारा के हिस्से में बिलखुसूस इंतहाई कलीदी किरदार अदा करेंगी। हज़ारा के अंदर बरादरियों का क्या रोल है और इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनके पास कैसी शख्सियात हैं जिनके जरिए वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और ये सब लोगों के बारे में है। फैसला लोगों का है, लेकिन लोग उस निज़ाम के ताबे हैं जिस निज़ाम के ताबे उन्होंने जिंदगियां गुजारी हुई हैं। क्या ये निज़ाम तब्दील हो रहा है या पुरानी शख्सियात सामने आ रही है? ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग वोट डालने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर से लोगों को नीचे लाने के लिए ना सिर्फ आपको सियासी नारा दरकार है बल्कि वसाइल की जरूरत भी है। किस जमात की गाड़ी कितनी दूर से कितने लोग ला पाएगी, इस बात का फैसला करेगी कि उस रोज जब वोट पड़ेगा किस जमात के पास कितने लोग वोट डालने के लिए मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक उम्मीदवारों को, वोटरों को किसी किस्म की सहूलत फराहम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इन इलाकों में सब कुछ चलता है। जलसे करने के लिए सिर्फ आपको पार्टी की तंजीम ही नहीं चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। और रिसोर्सेज सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए पैसों की बात नहीं है। रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर गाड़ियां हैं, रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर बसें हैं, रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर लोगों को लाने का इंतजाम है, लोगों को के खाने का इंतजाम है, लोगों की प्यास बुझाने का इंतजाम है। ये वो जमातें कर सकती हैं जिन्होंने बार बार ये रिपीट काम किया हुआ हो। इस इलेक्शन के अंदर, इस हिस्से में, हज़ारा बेल्ट के अंदर जो सियासी तौर पे बहुत तगड़ा एरिया है, ना सिर्फ पार्टी की तंजीम का इम्तिहान होगा बल्कि तजर्बा भी बहुत काम आएगा। इस इलाके में आपको 4 किस्म के वोटिंग ट्रेंड्स नजर आएंगे।
पहला ट्रेंड शख्सियात के गिर्द घूमता है, दूसरा ट्रेंड बिरादरी के गिर्द घूमता है, तीसरा ट्रेंड जमातों के गिर्द घूमता है और चौथा ट्रेंड मशहूर और मारूफ नारों के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इन्हिसार अपने वोट के अलावा शख्सियात पर ज्यादा है। वो तमाम लोग जो पिछले इलेक्शन में क्यू लीग के साथ थे दोबारा से मुस्लिम लीग नून में दाखिल हो गए हैं। इनमें से एक का नाम शाहजहां यूसुफ है। शाहजहां यूसुफ और उनके वालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस इलाके में मेन स्टे बन चुके हैं। हमने शाहजहां यूसुफ से पूछा कि उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है कि उनके आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा एतमाद हासिल कर गई। हजारा रीजन के अंदर सुबह हजारा के बनने के अलावा कोई बड़ा स्लोगन है जिसके ऊपर लोग मोटिवेट होते हैं? इसके अलावा इस वक्त बड़ा स्लोगन, स्ट्रेटेजिक स्लोगन या नहीं? देखिए जी, सबसे बड़ा स्लोगन जो है इस वक्त हजारा में सुबह हजारा का है और इसके अलावा जो महरूमियाँ हैं, जो हजारा की अक्सर दराज से महरूमियाँ हैं, उनके हवाले से है। और आप अभी यहाँ पे आए होंगे रास्ते पे, आपने देखा होगा कि कितना मुश्किल रास्ता है, कितनी बिजी है, कंजेस्टेड है और एक्सप्रेस वे जिसके लिए पिछले कई अरसे से हजारा की नुमाइंदगी कोशिश करती रही है वो नहीं बन सका। ये एक बड़ा स्लोगन है। और इसके अलावा बाकी जो पसमानदगी है, सुई गैस के प्रॉब्लम्स है, टूरिज्म की जो एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो हजारा से कामयाब हो सकती है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, इस सब डिप्रेवेशन जो हैं उनको देखते हुए हजारा के अवाम जो हैं इस वक्त वो समझते हैं कि PMLN जो है कि वो इंशाअल्लाह उनके जो मंशूर के मुताबिक सबसे बड़ी जो बात है वो हजारा की पसमानदगी, हम समझते हैं सब जब तक सुबह नहीं बनता तो पसमानदगी दूर नहीं होती। तो इंशाअल्लाह सुबह हजारा बनेगा तो पसमानदगी। PTI के पास यहाँ पे क्या स्लोगन है? देखिए जी, PTI के पास अभी तक सामने कोई स्लोगन आया नहीं है कि जिस पे वो यहाँ पे बात करें। वो एक चेंज की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हजारा में सच अल्लाह का करम है कि अरसा दराज से तब्दीली है। यहाँ पे ज़्यादातर मुतवस्सित नुमाइंदगी है, मुतवस्सित तबके से लोग नुमाइंदा हैं और आवाम भी बड़ी समझती है कि जो लोग इनमें से होते हैं, इनमें रहते हैं, तो उन्हीं को मुंतखब करते हैं। इंतखाबात की कवरेज के दौरान हमारा तजर्बा हमेशा से ये रहा है कि स्टेज के पीछे जो कुछ होता है या जो कुछ कहा जाता है वो स्टेज के ऊपर होने और कहे जाने से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता है। नवाज शरीफ के मानसरा के जलसे में भी यही असूल कार फरमा था। स्टेज के पीछे नवाज शरीफ की पार्टी के वर्कर्स दूसरे वर्कर्स के साथ बहस में उलझे हुए थे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लोगों को इकट्ठा करने की सियासत पर बहुत ज्यादा एतराज कर रहे थे। सर जी, मैं इसलिए नाखुश हूँ कि जो लोग स्टेज पे इनको आज लोगों को पानी पिलाना चाहिए था और ये लोग अभी इलेक्शन के दिन हैं, उस घर में भी जाएंगे जिस घर के दरवाजे नहीं है। और इनके यहाँ जब हम जाते हैं तो एक ठंडी प्याली चाय की होती है, जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो हम इनको 10-10 खाने खिलाते हैं। और आज इनको इस आवाम को पानी पिलाना चाहिए था। ये जिस सफेद कपड़े वाले को देखते हैं उसको पकड़ कर ऊपर स्टेज पे ले जाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अच्छा, आप इस वजह से नाखुश है कि आप स्टेज पे नहीं है? इस वजह से नहीं, मेरी मियाँ साहब एक बाथरूम पे ड्यूटी लगा लें, मैं उधर भी खुश हूँ, वहाँ खड़ा रहूंगा। मैं स्टेज की वजह से खुश नहीं हूँ। मैं दूसरा इस वजह से मैं नाखुश हूँ कि आज जो टिकट हैं वर्करों को नहीं दिए जा रहे। जिस वक्त आशिक रजा को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया तो उसने बड़ी बड़ी हस्तियों को हराया। एक वर्कर को, जिस वक्त सरदार मुश्ताक को हरीपुर से एक वर्कर को टिकट दिया तो उसने बड़ी बड़ी हस्तियों को हराया। पिंडी से एक UC वर्कर को, शकील अहवान को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया तो लोगों ने उसको वोट दी और उसने एक बड़ी बड़ी हस्तियों को हराया। असल चीज ये वर्करों के जरिए से तब्दीली आएगी। अगर जमहूरियत चाहते हैं उसको टिकट नहीं दे जिसके पीछे कौम या दौलत है, उसको टिकट दें जो वर्कर है और मुखलिस है। वो कहते हैं लेकिन जो वोट जो है वो तो कौम के ऊपर पड़ता है, लोगों के अपने जाती वोट होते हैं। इन्होंने लोगों को कौम में और मजहब में और इस चीज में तकसीम करके रखी है। कायद का हम एहतराम करते हैं लेकिन हम जो है एक नायल बंदे को वोट नहीं दे सकते। किसको देंगे फिर? हम फिर देखेंगे, नहीं तो वोट ही नहीं डालेंगे। अभी तक कम कर चुका हूं। नहीं, बुरी बात। इन साहब की बातें करीब खड़े हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन वर्कर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो लाहौर से नवाज शरीफ साहब के साथ तशरीफ लाए थे। उन्होंने भी इस बहस के अंदर छलांग लगा दी। साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो मत नहीं बने। नहीं, बात ये नहीं है। अगर कायद आप मानते हैं किसी को, नहीं
अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे कायद हैं, फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। नहीं, कायद का मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। हमारे लिए जो है नए लोगों को चुने ना। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर। मेरी अपनी सोच है। मैंने ज़लज़ले में मैं लाहौर से आया हूँ, मैंने हालात सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यार मैंने कायद का जलसा कामयाब करना है। मैं भी इसलिए आया हूँ। मियां साहब कागज बनता है जो 10 साल से हमारे खा रहे हैं पार्टी के लिए, ठीक है, जो 10 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं सिर्फ पार्टी के लिए। मियां साहब उन लोगों को टिकट दे जो नजरियाती लोग जो जिस वक्त माशाल्लाह लगा उधर से हजारों लोग गए। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जी आप कहते हैं कि कायद किसको कहते हैं? कायद हम हमारे सरबराह जो सरबराह है। और नज़म क्या कहता है? पार्टी डिसिप्लिन क्या कहता है? कि जो कायद कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो आपने कह दिया मैंने मान लिया। आप इस वक्त आए हुए हैं पब्लिक में, आप इस वक्त आए हुए हैं पब्लिक में, हर बंदा ये कहना शुरू कर देगा तो फिर आप आएंगे पब्लिक में। इससे पब्लिक गैदरिंग नहीं, इससे पब्लिक गैदरिंग पब्लिक में बात इन हाउस आप जो मर्जी बात करें, वोट देंगे, हम इस बंदे को वोट देंगे, लेकिन हम अपना बात करने का आप इन हाउस करें, पार्टी को नहीं करें, लेकिन नहीं हम अपनी राय दे रहे हैं, हम वोट देंगे। हम ये मीडिया में जाएगा। भाईजान देखिए, मैं नहीं मानता बात। जमहूरियत पसंद अपनी जो हमारी नहीं सर, नहीं बात ये नहीं है। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, दैट्स इट। लेकिन हम तनकीद करने का हक रखते हैं। तनकीद इन पार्टी नॉट पब्लिक प्लेस में आपको कि वीआर का सपोर्ट करो, यहाँ पर हम सब और अपनी जान देने के लिए तैयार है, दैट्स इट। मीडिया को क्यों देते हो, बात देते हो, क्यों डालते हो, क्यों देते हो? वो कल तले साहब कहेंगे मैं गया था, मैंने वर्करों को देखा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो जो वो कह रहे हैं तो वो चलना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी जमात को मेरी ज़ाती राय में इतनी इजाजत होनी चाहिए, बड़ी जमात बिल्कुल होनी चाहिए। एक तरफ आप मीडिया में और बड़ी बड़ी तंजीमें हुकूक की बात कर रही हैं, औरतों के हुकूक की बात कर रही है, उसकी बात, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं जी जो बॉस इज ऑलवेज राइट, ये सिर्फ नहीं से बात ये नहीं है। देखिए, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं, हम वॉलंटियर लगे हुए हैं, किसी के जर खरीद। आज हम एक नजरियात के पीछे, उसूलों के पीछे जा रहे हैं। जब वो उसूल और नजरियात नहीं रहे तो फिर क्या फायदा? आज मियाँ साहब मुझे बुलाए कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म, आपको क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी चाहिए और बस मुल्क के वज़ीर आज़म चाहिए आप। बस ठीक है ना। तो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? वज़ीर आज़म बनेंगे, बंदे की वजह से वज़ीर आज़म बनते हैं, तो ऐसी वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? एक नायल बंदे की वजह से वज़ीर आज़म बनते हैं, नहीं बने। अच्छा, एक तरफ कहते हैं चाहिए, दूसरी तरफ नहीं चाहिए। एक नए बंदे की वजह से हम कितना नुकसान, बहुत नुकसान करेंगे। आप नहीं बोलना चाहिए। इस दौरान इधर उधर से 3-4 पर्चियां मेरे हाथ में पकड़ा दी गई। हर पर्ची के ऊपर नामजद उम्मीदवारों के हवाले से बातें लिखी हुई थी और बाज लोगों ने यह भी एतराज किया था कि हम इतनी दूर से इस इलाके में काम करने के लिए आए हैं, हमने यहाँ पर साल गुजारे हैं और अब हमें कोई पूछता भी नहीं है। मैं नंबर के ऊपर हाथ रखा हूँ, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दीस थिंग्स। बात कर रहे हैं, आपको बता दूं कितनी देर किताब लेकिन ये हम वही हैं, वही डंडे खाने वाले। लेकिन हमने जब ये बात हुई तो जिस वक्त तुमने कहा कि हमें पता है पार्लिमानी सियासत में डंडे खाने वाले, पहले बात सुनो, मैंने डंडे खाए में, मेरी बात सुन ले, पहले बात सुनो। मुझे कर रहे हैं हुकूमत आई, हमारे हुकूमत आनी चाहिए, पार्लिमानी सियासत है। हमें मियाँ साहब की गवर्नमेंट चाहिए, यस, हमें मुस्लिम लीग ये बात है, ये बात है, ये बात है। अपनी पॉलिसियों को इस मुल्क में नाफज कर सकें, वो किस तरह आएगी? हमें एक पॉपुलर शख्सियत भी चाहिए, पॉपुलर सेंटिमेंट हमने भी कुछ हमारे पास यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं था। जनरल सलाहुद्दीन सामने था सरदार यूसुफ के, जनरल सलाहुद्दीन से खुद उन्होंने कुर्बानी दी है। पॉपुलर शख्सियत नहीं, जिस शख्सियत के साथ भी एन लग जाएगा, मीर नवाज शरीफ साहब का नाम लग जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगा। तो अगर लाहौर टोटल है, मुझे मानसेरा की बात
अगर सिर्फ अगर मैं मुस्लिम लीग का वो ये मानसरा में इस तरह है, एन के बगैर कोई जीत नहीं सकता, लेकिन हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एन शायद अगर किसी को भी हम कहेंगे जी इसे ये मुझे टिकट दे दें तो शायद मैं ना जीत सकूं। असल मामला नून लीग के नामजद उम्मीदवारों का भी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम लगता रहा है कि जब सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ किया जा रहा था तो बावजूद इसके कि उनके मेंबरान आईनी कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने इस नाम की तब्दीली पर किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। ये तोहमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इलाके में बहुत पीछे ले गई थी, लेकिन अब लोगों का ख्याल है कि नून लीग सूबा बनाकर खुद को मोतबर कर देगी। एक चीज आ रही है कि शिनक्यारी में रोका गया, मुख्तसर खिताब किया, मियाँ साहब चले गए। मुझे बताएं तहरीक हज़ारा अरूज पे थी, बाबा तर्जुमान को तोती बोल रहा था हज़ारा में, ठीक है जी। अगर मियाँ साहब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून न होती, कमजोर होती तो वो रोक लेते ना। हमने उन्हें क्यों रात 8 बजे तक क्यों रोका है शिनक्यारी में? बाबा तर्जुमान उसके बाद किधर की तहरीक सुबह हज़ारा, बाबा तर्जुमान नून है, मुस्लिम लीग मजबूत थी, इसलिए सरदार साहब मुस्लिम लीग नून में हम डंडे लेके आगे थे, लेकिन अब हम सरदार साहब को हार लेके आगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे कायद हम किसी कैंडिडेट के साथ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पिंजरे में बंद ये शेर मुस्लिम लीग नून के बारे में एक सियासी इस्तारा बन सकता है कि है तो शेर लेकिन अभी भी माजी के पिंजरे में बंद है। क्या ये शेर पिंजरा तोड़ाकर मैदान में भागेगा और अपने मुखालिफिन को खा जाएगा? पीटीआई का ख्याल है कि अगर इनके पास शेर है तो हमारे पास चीते हैं। नवाज शरीफ को हजारा के इलाके की अहमियत का एहसास है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को बहुत संजीदगी से ले रही है। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर एक तरफ तो अनहोनी नहीं भी होती और फिर कभी कभी अनहोनी हो भी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त शायद कमजोर विकेट पर है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कैंपेन उन्होंने तगड़ी कर ली, अगर धड़ाबंदी के अंदर उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और अच्छे कैंडिडेट्स अपने साथ ले लिए और एक ऐसा कम्बिनेशन बना लिया जो अगर विनिंग कम्बिनेशन नहीं भी है तो टफ कम्बिनेशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे इक़्तिदार का शौक नहीं है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस इलाके में पाई जाने वाली पसमानदगी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भी भूल रहे हैं कि जो लोग उनके साथ इस वक्त खड़े हैं वो पिछले कई साल ताकत में मौजूद थे। अगर ये इलाका इस वक्त पसमानदा है तो उनके मौजूदा इत्तेहादियों का भी इसमें यकीनन हिस्सा होगा। बहरहाल अब वो उनके साथ खड़े हैं और तारीफ के पुल बांध रहे हैं। वो सुबह हजारा बनाने की भी बार बार बात करते हैं और जब भी बात होती है लोग उस पर बहुत बलबले का इजहार करते हैं। ये हजारा बनता है सुबह तो नवाज शरीफ से बढ़ के और कौन खुश हो सकता है? मुझे बड़ी खुशी होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस जलसे को मैंने करीब से देखा। ये एक मुस्लिम लीग का जलसा था, ऐसा जलसा जो मुनज़्ज़म था, लेकिन इसके अंदर आपको धड़ों के नुमाइंदे ज्यादा नजर आ रहे थे। बाज लोगों का ख्याल था कि ऐसे जलसे हर पार्टी करवा सकती है अगर उसके साथ वो चंद लोग मौजूद हों जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जब मैंने तकरीर खत्म करने के बाद बातचीत की तो वो बहुत पुरजोश थे और पुरुम्मीद भी। ये बताइएगा कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज मानसेरा हजारा से बाकायदा आगाज जो इसकी क्या वजह? ये कोई ऐसा सच मेरा ख्याल है कि बाकायदा आगाज तो अभी इंशाल्लाह होगा। ठीक है, ये हमारा एक जलसा है जो पहले से प्लान था।
और फिर आज ये बाकायदा तौर पे सरदार यूसुफ साहब हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आज उस हवाले से यहाँ पर दौरा मुकर्रर किया हुआ था हमने। लेकिन इसको आप कैंपेन का आगाज़ भी कह सकते हैं, एक जो है ना वो जलसा भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी तो अब इंशाल्लाह अब शुरू हो ही जाएगी सूनर और लेटर। तो हम इंशाल्लाह बाकायदा प्लान अब बना रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे और कब से शुरू करेंगे। लास्ट अभी चूँकि इलेक्शन कमीशन ने भी तो देखे ना, वो अभी जो टाइम शेड्यूल दिया है 29th इज द लास्ट डेट फॉर मेनी थिंग्स, ठीक, उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी के लिए मुझे लाहौर में वक्त देना पड़ रहा है जी। हाउ डू यू सी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ योर पार्टी इन हजारा, starting from Abbottabad all the way to Pakistan? The prospects appear to be very bright, alhamdulillah, and most of the people have joined PMLN. जितने भी यहाँ पे कदावर शख्सियतें जो पहले हमारे साथ थी वो वापस भी आई हैं, हमारे अपने जो पुराने साथी हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा इंशाल्लाह वही रिजल्ट देगा जो हज़ारा ने 1999 में दिया था। बंदे ज़्यादा, सीटें कम नहीं है आपके पास? वो ये कैफियत वैसे बाय एंड लार्ज तकरीबन हर जगह पे है। अभी पंजाब में हमें फैसले करने पड़ रहे हैं, 5 उम्मीदवार है, 7 उम्मीदवार है एक हल्के में, किसको टिकट दें किसको ना दें, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि अफ़वाम तफहीम के साथ। थैंक यू वेरी मच। नवाज शरीफ साहब ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, उनके ख्याल में हज़ारा के अंदर उनके पास वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो दोबारा वो परफॉर्मेंस दोहरा सकते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी और पार्टी के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस वक्त में दूसरे ऑपरेटर्स भी बड़े तगड़े हैं। देखना ये है कि दोनों मॉडल जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किए उनमें से कौन ज़्यादा कामयाब होता है। कहते हैं कि सियासी जलसे को इख्तिताम के बाद नहीं देखना चाहिए। इसकी हालत ऐसे सिनेमा हॉल की तरह होती है जहां पर से लोग जब निकलते हैं तो अजीब व गरीब किस्म के नज़ारे आपको नजर आते हैं। कुर्सियां तोड़ते फोड़ते हुए, झंडे उखाड़ते हुए वो फ्रेम भी अपने साथ ले जाते हैं जिनके ऊपर इनके पसंदीदा कायदीन की तस्वीर लटकी हुई होती हैं। जलसागाह से निकलते हुए ये लोग हज़ारा की किस्मत का फैसला 11 मई को करेंगे। देखना ये होगा कि इन लोगों की तरफ से जिन तरजीहात का इजहार होगा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर वो किस किस्म के असरात मुरतब करेगा। असल जंग लोगों की नहीं, असल जंग खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कुर्सी के हसूल की है। हमारी कवरेज का सिलसिला जारी है। मजीद प्रोग्रामों में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की कवरेज देखते रहिए।